Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम खिजर भाई. So first of all, thank you very much for joining, and thank you very much, Abdurrahman Bhai, for accepting my request to speak on this topic. I follow you for a while. Have been following you on Twitter. Have been reading your post on the economy and different investing and this capital markets related posts. And I was really impressed on the thread you wrote about power sector. That was basically about your experience. So um, I just after that reached out to Abdurrahman Bhai, who's himself an investor and also an educator on Pakistani capital market. So I requested Abdurrahman Bhai to speak on this important sector of our stock market. I have been in the stock market just for 1.5 years, and I don't know, I never knew about anything beyond Hubco and Capco. So whenever I research, there are of course some power generation companies, but I didn't know much about those. So I never tried investing in those companies. So thank you very much everyone for joining. Thank you very much Abdurrahman Bhai for this opportunity to speak about this sector. I have just a few questions. So I'll go during the first half with a couple of my questions, and then we can open the mic for everyone to add anything if someone wants to add or ask you a question. So thank you very much, everyone. So Abdurrahman Bhai, if we can start with talking about briefly about this sector. So, what kind of companies are in this sector, power generation and distribution sector? And a little bit discussion, what kind of companies those are, because if I see mainly are on the generation side, just one on the distributor, but I would pass on the floor to you to just explain about this sector. Thank you. Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome. First of all, big thank you to Khizar Bhai and the team of Sarmaya for inviting me and arranging this space. For those of you who don't know me from Twitter, मैं अपना एक introduction करा देता हूँ. My name is Abdul Rahman and I have been investing in Pakistan capital markets for quite some time now. And मैंने भी 2-3 महीने पहले Twitter join किया था, and I have noticed the same thing as Khizar Bhai, that when it comes to Pakistan's power sector, there are a lot of confusion, misconceptions. So the aim of this space would be to clear all those misconceptions and your questions, and by the end of this hour make you an expert on this sector. So I know the number one question on everyone's mind is that when we look at Pakistan's power sector, तो जो इसमें जो companies हैं उनके अगर हम profits देखें और उसकी earnings देखें तो वो तो बहुत अच्छी हैं, but when it comes to share price and their dividend payouts तो उधर ये sector हमेशा disappoint ही करता है. Like you asked Khizar bhai, इस sector में majority of the companies are power generation companies. There are almost 12 listed companies, and excluding K Electric, which is both a power producer and a power distributor, all of them are power generation companies. And the reason for this is that the power distribution sector is already in the hands of the government. So they have not privatized it and they have not listed it on the power sector. So the focus of our talk today will also be on the power generation companies. So if you look at the business of power generation companies, इसके लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, जो बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है उसको एक चीज़ की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो है PPA, पावर परचेस अग्रीमेंट. दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट and the power producing company.
अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के पावर सेक्टर की बात करें ना, तो वो एक सिंगल बायर मॉडल है। व्हाट इज़ द सिंगल बायर मॉडल? सिंगल बायर मॉडल ये होता है कि कोई भी पावर कंपनी व्हेन इट्स इन्वेस्ट इन द पावर सेक्टर और एक वो पावर प्लांट लगाती है, तो इट कैन ओनली सेल इलेक्ट्रिसिटी टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा वो किसी को भी सेल नहीं कर सकती विदाउट गवर्नमेंट्स परमिशन। सो इस वजह से गवर्नमेंट को जो भी इसमें इन्वेस्टर आता है उसको एक फिक्स रिटर्न ऑफर करना पड़ता है। वो हम आगे फिर अपने क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि वेदर दिस इज़ द बेस्ट डील फॉर पाकिस्तान और नॉट, और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं इन द फ्यूचर। बट फॉर एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये सबसे पहले अपने माइंड में रखना होगा कि इसमें आईपीपीज, जिन पावर जनरेशन कंपनीज को आईपीपीज कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उस पर उनको फिक्स डॉलराइज्ड रिटर्न्स देती हैं, विच वेरी फ्रॉम 15% टू 20%। अब क्योंकि ये कंपनीज को एक हैंडसम गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट दे रही होती है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, व्हाट गवर्नमेंट्स आस्क इन रिटर्न इज़ दैट कि आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो आप हमें कॉस्ट पे सेल करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 10 रुपीज़ का यूनिट बना रहे हैं और आप हमें 12 का बेच रहे हैं। हम आपको ऑलरेडी एक हैंडसम रिटर्न दे रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो ऑन कॉस्ट बेसिस आप गवर्नमेंट को सेल करेंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत बड़ी मिसकन्फ्यूजन होती है व्हेन पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कंपनीज जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है या वो जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो चीपर होता है। अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देखें ना, सो इट मेक्स अ वेरी 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 लिटिल डिफरेंस कि एक कंपनी 20 रुपीज़ का यूनिट बना रही है या वो 5 रुपीज़ का यूनिट बना रही है। सो ये एक हमें मिसकंसेप्शन जो है ना वो दूर कर लेना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द पावर प्रोड्यूसर, उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कैपेसिटी पेमेंट्स और एक होता है एनर्जी पेमेंट्स। एनर्जी पेमेंट्स का मैंने आपको समझा दिया कि वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उस प्लांट की, वही उतनी एनर्जी पेमेंट गवर्नमेंट उसको दे देगी। अब जहाँ कैपेसिटी पेमेंट्स आ जाती है ना, वहाँ सारी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे अब हमने मीडिया पे बहुत डिस्कशंस भी होती हैं कि कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा हैं कम हैं। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पहले हमें समझना चाहिए कि कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। वन इज़ द डेट रीपेमेंट एंड द अदर इज़ द इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, अब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है यूज़र को इलेक्ट्रिसिटी कम सम पे मिले। कि आपके पावर प्लांट की जो भी कॉस्ट है उसका 75% आप बैंक से बोरो करेंगे या किसी और इंस्टीट्यूशन से, और जो 25% है वो आप अपनी इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे। जो उनको डॉलराइज रिटर्न्स देती है 15 to 20% के बीच में, और जो डेट रीपेमेंट होती है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है कंपेयर टू दिस रिटर्न 7%। तो इस वजह से गवर्नमेंट के लिए भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा, अब हम इस पे फोकस करते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स पे। कैपेसिटी पेमेंट्स में जो आरओई का एस्पेक्ट होता है ना, उसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आजकल पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट्स अप्रॉक्स 15% हैं, तो डॉलराइज रिटर्न्स भी इन कंपनीज के इतने ही होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा सबको। आप इमेजिन करें, आप एक बैंक में जाते हैं सेविंग अकाउंट खोलने, तो बैंक आप 100 रुपये डिपॉजिट कराते हैं, तो वो बैंक आपको एनुअली 15 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा। अब एक दिन आपको बैंक का जो मैनेजर 100 रुपीज़ है ना, नेक्स्ट 20 ईयर्स और ईयर्स पूरे होंगे ना, तो मैं आपके जो 100 रुपीज़ है ना वो आपको वापस नहीं करूँगा, बट मैं आपको इंस्टेड ऑफ पेइंग ₹15 एवरी ईयर मैं आपको 25 रुपीज़ दूंगा। एंड दिस इज़ द होल लॉजिक बिहाइंड कैपेसिटी पेमेंट्स फॉर आरओई कंपोनेंट। इसमें हम मीडिया कन्फ्यूजन देखते हैं, इतनी कन्फ्यूजन देखते हैं कि इवन वेरी पॉपुलर बिजनेसमैन ऑफ आवर कंट्री वो आके मीडिया पे ऐसे कह रहे होते हैं कि इस पावर प्लांट में एक कंपनी ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए और हर साल उनको $25 मिलियन प्रॉफिट हो रहा है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क।
सो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। असल में इस सेक्टर में 15 to 20% ही रिटर्न्स हैं, बट क्योंकि जब वो रिटायर होता है तो उसको उसकी जो वैल्यू इन्वेस्ट की होती है पावर प्रोड्यूसर्स में वो उनको नहीं मिलती, तो इस वजह से जो 15% होता है वो 25% बन जाता है। सो ये सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है, तो हम सबको पता होना चाहिए। एंड जो डेट रीपेमेंट्स होती है ना, उसका कैपेसिटी पेमेंट में स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो फ्रंट लोडेड होती हैं। प्लान ऑफ इट्स ऑपरेशन। रहमान भाई, आपकी आवाज़ चली जाती है शायद। पता नहीं मेरा मसला है या आपका, थोड़ा सा सिग्नल वीक होते हैं सम टाइम। कुछ कंफर्म कर लें कि आवाज़ बीच में कट रही है कि नहीं। चले, आप थोड़ा सा ट्राई हाँ, मैं करें, अगर कंटिन्यू करता सिग्नल हूँ, का अगर कोई कोई इशू हो मसला तो है तो मुझे आप बता दीजिए। थोड़ा सा आगे भी। ठीक है, हम्म ठीक। ओके। तो हमने आरओई कंपोनेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब जो डेट रीपेमेंट है वो फ्रंट लोडेड होता है। फर्स्ट 10 to 12 ईयर्स में रीपे करना होता है। इस वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट 10 to 12 ईयर्स में वो ऑलमोस्ट डबल होती हैं, क्योंकि उसमें डेट रीपेमेंट का कंपोनेंट भी होता है। के प्रॉफिट्स जब हम इनके डिविडेंड तो वो बहुत। तो अब हम ये जो दो हमने नॉलेज अभी गैदर किया है, इसको हम अप्लाई करते हैं और हमें समझ आएगा कि ये कैसे होता है। हम अज्यूम करते हैं कि एक प्लांट है जिसमें $1 की कॉस्ट है, तो उसमें कंपनी $250 मिलियन की इक्विटी इन्वेस्ट करती है और $750 मिलियन की डेट अरेंज करती है। अब गवर्नमेंट उसे कैपेसिटी पेमेंट्स पे करती है राउंड अबाउट एवरी ईयर $150 मिलियन। $75 मिलियन फॉर द $250 मिलियन इट हैज़ इन्वेस्टेड, और $75 मिलियन जो कि उसने डेट रीपे करनी है। अब जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, तो रेवेन्यू में सबसे पहले आती हैं कैपेसिटी पेमेंट्स। तो वहाँ कंपनीज रिकॉर्ड कर लेती हैं $150 मिलियन। फिर मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया कि जो एनर्जी पेमेंट्स होती है ना, वो और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, उसमें बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है। सो एंड में जो बॉटम लाइन होती है ना कंपनी की, वो कैपेसिटी पेमेंट्स ही होती हैं। सो इस प्लांट की जिसकी $1 बिलियन कॉस्ट थी, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट $250 मिलियन थी, उसके इनिशियल फ्यू ईयर्स में $150 मिलियन का प्रॉफिट शो हो रहा होगा। बट अब आप मुझे कहेंगे कि इस 150 में से $75 मिलियन तो बैंक की रीपेमेंट है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर पीपल गेट इट रॉन्ग। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट शो हो रहा होता है इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ डेट रीपेमेंट। बहुत सारे लोग ये सोच के कि पीई रेशो इसका बहुत कम है, उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी बंदा कहे कि एक पावर सेक्टर की कंपनी है 3 PE पे ट्रेड हो रहा है तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप मेक श्योर करें कि उसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें डेट रिपेमेंट तो इंक्लूडेड नहीं है। ये नंबर वन रीज़न है वाई दिस सेक्टर ट्रेड्स एट अ लो पीई। अच्छा, अब इसकी दूसरी जो वजह है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर डेट। अब हम इसको समझेंगे कि दिस हाउ दिस सेक्टर इज अफेक्टेड बाय सर्कुलर डेट, एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पैक्ट होता है। अच्छा, इसमें खिदर भाई मुझे आपकी थोड़ी असिस्टेंस चाहिए होगी। आप मुझे बता रहे थे कि आपने तो पावर सेक्टर में ज़्यादा हपको और कैपको के बारे में ही सुना है। तो हपको ने अभी 1-2 साल पहले ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, चाइना हब पावर जनरेशन कंपनी, विच आई थिंक इज़ द बिगेस्ट सी पैक IPP प्रोजेक्ट। इट्स अ 1300 मेगावाट प्लांट, और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन थी। तो अब $2 बिलियन के प्लांट में कंपनी ने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए। सही है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, हर साल $350 मिलियन कैपेसिटी पेमेंट पे करती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 175 उनका रिटर्न होता है ऑन द $500 मिलियन दे हैव इन्वेस्टेड, और $1 मिलियन वो उनकी डेट रीपेमेंट्स होती हैं, जो कि तक चलती रहेंगी। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा खिजर, कि अब इस प्लांट को ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं ऑपरेट होते हुए, और हर साल इसको $175 मिलियन रिटर्न ऑन
ही मिलता है। अगर हम उसको इस प्लांट में थोड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो गई थी, तो अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लें तो ओवर 3 ईयर्स जो इसकी टेक होम इनकम है वो भी $400 मिलियन है, जो कि अगर हम एक एवरेज एक्सचेंज रेट लें ऑलमोस्ट 70 बिलियन रुपीज़ बन जाती है। अब मैं आपसे एक ऐसे ही जस्ट एक फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ दिस 70 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस कंपनी को कितने पे कर दिए हैं? जो हम सुनते हैं उसमें तो रेयरली पेमेंट जाती है, जब भी पेमेंट मिलती है इनको तो पता चल जाता है मार्केट में। आई रियली डोंट नो हाउ मच, हम्म। हाउ इज द सिचुएशन। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि आउट ऑफ 70 बिलियन एज ऑफ 30th जून 45 बिलियन आर स्टिल पेंडिंग। ये प्लांट इज़ द फ्लैगशिप ऑफ सी पैक, मतलब इसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, उसके बावजूद पावर सेक्टर की जो सिचुएशन है इतनी टाइट है कि इनकी जो एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है, इनको जो उसने एनर्जी पेमेंट्स माइनस करके और बैंक से जो बोरिंग किया उसको वापस करके, उसका मोर देन 50% इज स्टिल स्टक इन सर्कुलर डेट। सो अब आपके बहुत दफ़ा ये कंपनीज भी बताती हैं और न्यूज़ में भी आता है कि गवर्नमेंट इज़ पेइंग 80% ऑफ आर इनवॉइसेस। तो उसमें से जो फर्स्ट 60% होता है वो एनर्जी पेमेंट्स होती हैं, और जो सेकंड 20% होता है वो डेट रीपेमेंट्स होती हैं। तो जो लास्ट पोर्शन होता है वही एक्चुअली वो डिविडेंड होता है शेयर होल्डर्स का, जो कि स्टक अप हो जाता है। सो द टू मेन रीजंस फॉर लो डिविडेंड्स इज़ वन, कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ओवर स्टेटेड होते हैं क्योंकि उसमें एक बिग पोर्शन डेट रीपेमेंट का होता है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपोनेंट होता है वो सबसे ज़्यादा लाइकली होता है कि वो सर्कुलर डेट में फंस जाए। बट गुड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर इज़ दैट कि ये जो पेमेंट्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी की हुई हैं। सो यूजुअली होता यह है कि हर 3-4 साल बाद व्हेन दिस पेमेंट्स अक्यूमुलेट, तो गवर्नमेंट एक सेटलमेंट कर लेती है पावर प्रोड्यूसर्स के साथ, और वो सारी प्रीवियस पेमेंट्स एक साथ पे कर देती है। इसी तरह हमने देखा होगा पिछले 1 साल में जिन जिन पावर प्लांट्स को अपनी पुरानी पेमेंट्स मिली हैं उन्होंने अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किया है। सो टू समराइज कि इसमें हमें सबसे पहले मेक श्योर करना होगा कि हम पी रेशियो को बिल्कुल मत देखें, और दूसरा हम हमें अपने एक माइंड में बिठा लें कि इसमें जो डिविडेंड पेमेंट्स होंगी दे कैन बी इनकन्सिस्टेंट, किसी साल ज़्यादा होंगी किसी साल कम होंगी, बट द पेमेंट्स आर वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट ऐसे हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बोरो कर रही है, इतने सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये एक कंपनी की अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी हो तो उसको जज करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप देखें उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपोनेंट है। आप टोटल कैपेसिटी पेमेंट कभी मत देखें, हमेशा देखें कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपोनेंट है उसको आप, जैसे हम बाकी कंपनीज में पी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी कंपोनेंट को 4-5 से कर लें। और चूँकि इसमें भी पेमेंट्स लेट होती हैं तो हमें इसके लिए भी स्केप्टिकल होना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ जजिंग द वैल्यू ऑफ अ कंपनी। अच्छा, ये इसका हमने ऑलमोस्ट पीपीए के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो कवर कर ली। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना फॉर एनालाइजिंग एनी पावर कंपनी, वो उसके होते हैं नेट रिसीवेबल्स। नेट रिसीवेबल्स ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो पेमेंट करनी होती है और कंपनी ने जो बोरो किया होता है बैंक से या अपने फ्यूल सप्लायर से, तो जब भी वो पेमेंट होगी तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो उनके पास चला जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कंपनी के पास आ जाता है, और वही कंपनी एंड में एज डिविडेंड पे आउट करती है। तो अगर हम इन दो चीज़ों को कंबाइन कर लें, फर्स्ट इज़ द आरओई कंपोनेंट रिटर्न एंड सेकंड इज़ द नेट रिसीवेबल्स, ये अगर हम दोनों कैलकुलेट कर लें तो हम एक बहुत अच्छी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी। अच्छा, अब दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट जो फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ ना फॉर माई इन्वेस्टमेंट्स, उसके लिए मैं जो आर ओ ई कंपोनेंट होता है फॉर एनी प्लांट उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो पी रेशो की तरह, एंड देन आई ऐड द 70% ऑफ नेट रिसीवेबल्स। सो इससे आप कभी भी
कोई भी प्लान की आपने वैल्यू देखनी हो, उस कंपनी की अर्निंग्स कितनी है असल में जो एज अ डिविडेंड पे आउट होंगी, ये उसका बेस्ट फॉर्मूला है इन माय ओपिनियन। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा मार्केट पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि ये सेक्टर कैसे ट्रेड होता है। आपने देखा होगा जो भी कंपनीज, पावर कंपनीज, ब्रोकरेज हाउसेस कवर करते हैं, वो इसको फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड यील्ड अप्रोच करते हैं। जब भी किसी कंपनी का अच्छा डिविडेंड अनाउंस होता है, हमने देखा भी था पिछले 1-2 महीने में, तो उसका जो शेयर होता है उसमें एप्रिसिएशन आ जाती है, और अगर डिविडेंड अनाउंसमेंट कम हो तो एक बायर्स एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो डिविडेंड पे आउट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने आपको बिल्कुल सही समझा दिया कि उनका आरओई कंपोनेंट प्लस देयर नेट रिसीवेबल्स, बट इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, दैट इज़ द विलिंगनेस टू पे डिविडेंड्स। आपने देखे होंगे कुछ कंपनीज हैं लिस्टेड जिनकी बैलेंस शीट पे कैश भी होता है, बट दे डू नॉट पे आउट डिविडेंड्स। सो अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इस तरह सोचें कि आपने 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, इसको जज करने के लिए आप ग्रुप की हिस्ट्री देख सकते हैं, आप उस कंपनी की भी हिस्ट्री देख सकते हैं कि पहले ये डिविडेंड देती थी, भी इसने गवर्नमेंट ने इसके रिसीवेबल्स क्लियर किए हैं तो ये डिविडेंड्स देते हैं नहीं देते। और दूसरा एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि उस ग्रुप की जो दूसरी कंपनीज हैं जो दूसरे सेक्टर्स में ट्रेड करती हैं, उनकी डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। सो उससे आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। अच्छा, विद दिस मैंने अब सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना ऑफ हाउ टू वैल्यू अ पावर सेक्टर कंपनी, वो मैंने कवर कर लिए हैं। सो जस्ट टू समराइज एंड देन विल गो फॉर क्वेश्चंस। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पीई शुड नेवर बी यूज्ड। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इस सेक्टर पीई जो लोग उसको यूज़ करेंगे वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि डोंट एक्सपेक्ट रेगुलर डिविडेंड्स। बहुत सारे लोग इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वो देखते हैं पिछले साल इस कंपनी ने 5 रुपये डिविडेंड दिया था तो इस साल भी 5 रुपये देगा। ऐसे नहीं होता, मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा ये चेंज होता रहता है। कम कंपनीज होंगी जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देती हैं। आपने कंपनी की डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी जज करनी है और उसकी विलिंगनेस टू पे डिविडेंड जज करनी है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। और लास्टली, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, ऑलवेज अप्लाई अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको लगता है एक कंपनी की वैल्यू 100 रुपीज़ है, सो ट्राई टू इन्वेस्ट एट 60 to 70, बिकॉज अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आती है मार्केट में तो आप लॉस से बच जाएं। With this, Khizar bhai, we can open the floor for questions, and I will be happy to discuss anything specific about the sector or any other company. और जैसे आपने कहा था कि Sure, I wrote said about my sure. investment experience as well in Nishad Power. So any question on that is most welcome. सही सही। मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ उससे पहले। अरफान भाई, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है स्पीकर की, अगर नहीं मिली तो माइक पे तो क्लिक करें। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू आल्सो, अरफान भाई। मीन टाइम रहमान भाई, आप जब अपना सारा ये एक एनालिसिस करते हैं तो व्हाट इज योर फेवरेट कंपनी अमंग दिस सेक्टर? अच्छा खिजर भाई, जस्ट एक क्लियर कर दूं कि दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट इस सेक्टर में ना बहुत वॉलेटिलिटी होती है। कोई एक कंपनी कभी कम डिविडेंड अनाउंस कर देना तो उसका शेयर आसानी से 10% गिर जाता है। तो इसको ना आपको हर दफ़ा देखना पड़ता है कि प्राइस क्या लग रही है। बट फ्रॉम अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो कंपनी है ना, वो नए के प्लांट्स ऑनलाइन आ रहे हैं, तो फ्यूचर में उनकी अर्निंग्स तो बढ़ जाएंगी, बट जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया उनको चैलेंजेस भी रहेंगे। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू ऑलवेज हैव टू लुक first calculating its fair value and then seeing which one is the best investment. Safety wise, contract wise, all the IPPs are very good. उनके सबके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सिक्योर हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनके 2-3 साल में कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो आपको उसमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। But why we always hear about Hubco and not others? Capco भी sometimes सुनते हैं, but I was not much aware of this sector. तो मैंने जब देखा कि Capco तो fully furnace oil पे है,
Then I started thinking about Hubco because they have diversified RLNG पे भी हैं और कोल पे भी हैं और सोलर पे भी हैं, फर्नेस पे भी हैं। तो इसकी क्या रीजन है कि ज्यादातर बात नहीं होती सब कंपनीज की? अच्छा, ये हबको और कैपको वाज द बिगेस्ट आईपीपी इन पाकिस्तान अंटिल 2015। कैपको और हबको दोनों 1994 की पॉलिसी में लगे थे। हबको वाज अप्रॉक्सीमेटली 1300 मेगावाट। सो इस ये रीज़न है कि इसमें फंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और वॉल्यूम इसमें अच्छी होती है, तो लोगों ने जब इन्वेस्ट करना होता है तो वो वॉल्यूम भी देखते हैं। इतनी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमने अगर सेल करना हो तो आसानी से बिक जाए। मेजर यही वजह है। बाकी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो दूसरी कंपनीज हैं मोस्टली के 200 मेगावाट 300 मेगावाट प्लांट्स हैं, वो भी उतनी ही अच्छी हैं। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे आर एज गुड कैपको एंड कीपिंग इन माइंड यू गेट इट एट अ गुड प्राइस। सही। अच्छा, इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के। सबसे पहले तो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट आवर प्रीवियस सेशन दैट वाज मेनली अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स ऑन आवर मार्केट, और उसमें हम आपने काफ़ी कन्विक्शन के साथ बताया था कि यू वुड प्रेफर टीआरजी। नॉर्मली लोग घबराते हैं कि शायद नहीं नाम लेना चाहिए, बट उसमें अमेजिंग अमेजिंग रिटर्न मिली है। अगर मैं टीआरजी को देखूं अपने बॉटम से, मेरे ख्याल है 95% उसने उसमें रिटर्न दिया है। और अगर रीसेंट लो से देखें तो उसने मेरे ख्याल है कोई 50% के करीब रिटर्न दिया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जो सेशन किया था उसको ऑफलाइन भी बहुत सारे लोगों ने सुना है, और स्पेशली जो आपने आईटी सेक्टर और कुछ स्टॉक्स पे बताया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा आपसे यही क्वेश्चन था, मैंने कहा कि आपसे भी आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर व्यूज अबाउट पावर जनरेशन सेक्टर। आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी मैं नॉर्मली मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, तो मैं इंडेक्स को देख रहा था, मुझे तो सारे बुलिश पॉइंट मिल रहे थे, बेरिश बहुत कम है। मैं पर्सनली तो बुलिश हूँ, लेकिन जिस तरह की न्यूज़ आ रही है अभी, ये कोई पॉलिटिकल न्यूज़ थी इमरान खान की अरेस्ट की, तो सम पीपल आर अ बिट वरीड कि इस तरह की न्यूज़ तो अच्छी नहीं है, इट विल क्रिएट अनसर्टेनिटी। तो ओवरऑल आपका क्या व्यू है इस सेक्टर के बारे में स्पेशली? ओवर टू यू इरफान भाई। थैंक यू वेरी मच खिजर साहब फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। और जिस तरह के हमने टीआरजी का डिस्कस किया था, उसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। तो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड द लिसनर्स कि ये जो भी हम पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हब पावर कंपनी जो है, इसमें अभी हम देख रहे हैं कि इसकी जो टारगेट प्राइस है, ये तकरीबन 136 रुपये तक हम देख रहे हैं बाई जून। और इसके दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये जो रिसेंटली आईएमएफ से कुछ एग्रीमेंट्स में हमने क्लॉजेज डाली थी, जिसमें हमने उसको सर्कुलर डेट की रीपेमेंट्स की हैं। और इसी तरह एक एफसीए की पेमेंट्स भी आपने देखा होगा रिसेंटली, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं पाकिस्तान में, उसमें काफ़ी हैवी पेमेंट्स आई हैं। तो ओवरऑल वी सी के पावर सेक्टर में काफ़ी बेहतरी हम आइंदा आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दी आवर गेस्ट जिन्होंने ये सारी प्रेजेंटेशन दी है इस पे। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये इनसे चाहूँगा कि ये जो रिटर्न ऑन इंडेक्स इसकी बात कर रहे थे, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपोनेंट की ऑन दी पावर सेक्टर, तो एज पर माय जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। और उसमें जो इसका यूएस डॉलर का इंडेक्सेशन था आरओई कंपोनेंट में, उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा उनसे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि इसमें हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी का मेजर कंपोनेंट उन्होंने डिस्कस किया, तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा रीनेगोशिएशंस हुई हैं
तकरीबन 47 IPPs के साथ। तो इस पे हमें थोड़ा सा अपडेट कर दें। थैंक यू। थैंक यू इरफान भाई। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की निगोशिएशंस हुई थी विद द 1994 पॉलिसी एंड 2002 पॉलिसी पावर प्लांट्स, उसमें डॉलर इंडेक्सेशन फिक्स हो गई है, ख़त्म नहीं हुई, फिक्स हो गई है एट फॉर 2002 एट डॉलर इज इक्वल्स टू 148, और फॉर द 1994 पॉलिसी 50% ऑफ द डॉलराइजेशन हैज़ बीन फिनिश्ड, बाकी 50% अभी भी है। एंड आप हबको की अभी बात कर रहे थे, तो उसके जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो कि अभी काम कर रहे हैं वो अंडर 2015 पॉलिसी आते हैं, उसमें अभी तक डॉलराइजेशन, डॉलर इंडेक्सेशन अभी तक ऑन गोइंग है, वो उसमें बिल्कुल कोई रीनिगोशिएशन नहीं हुई। जी थैंक यू। जी इरफान भाई कोई ऐड करना चाहेंगे? जी थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। इसमें मेरे पास ये थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा था। तो अभी जो हमारे रिसर्च के पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, तो इसकी जो एनर्जी मिक्स है और इसके जो सर्कुलर डेट के लेवल्स कम हो रहे हैं, तो आई थिंक इन्होंने अभी तक 56 रुपीज़ पर शेयर का इनको जो है पेमेंट्स रिसीव हो चुकी हैं। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गोइंग फॉरवर्ड जो हपको पावर कंपनी है वो रेगुलर पे आउट्स करेगी, और इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो हम साल 2022 के लिए तकरीबन 17 से 18% पे देख रहे हैं। तो अभी जिस तरह प्रेजेंटर ने एक बड़ा अच्छा फैक्ट यहाँ पे हाईलाइट किया कि हमारी मार्केट्स में जो है डिविडेंड यील्ड को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि उसमें जो एवरी 5 आउट ऑफ 10 कंपनीज होती हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड की प्रेफरेंस होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड की होती है। और जिस तरह कि अभी हम इसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 to 18%, तो इंशाल्लाह हबको और कैपको ये आप जहन में रखें कि ये आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और इनसे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन हम देखेंगे। बट इट इज़ सब्जेक्ट टू कि गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है, अगर ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं IMF के साथ एग्रीमेंट के नतीजे में, इसको ये कंटिन्यू करते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल होगी। अगर इसमें फिर कोई थोड़ा सा आगे पीछे उन्होंने किया तो फिर ये शेयर्स थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म भी कर सकते हैं। सही है। इरफान भाई अगर मैं देखूं तो कैपको का जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत अच्छी है। थोड़े से स्टॉक्स हैं जो 2025 प्लस पे भी उनकी डिविडेंड यील्ड है, लेकिन इसमें इतनी कोई ट्रैक्शन नजर नहीं आती नॉर्मली। कैपको में कोई ना कोई मसला बता रहे होते हैं, कभी इसके कॉन्ट्रैक्ट का, कभी कोई मसला। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड होने के बावजूद भी ये कैपको इतना पॉपुलर तो नहीं है? देखें, एक तो इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंसेस होती हैं और दूसरा एक अनसर्टेनिटीज होती हैं रिलेटेड टू पावर सेक्टर्स, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और ये सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा माउंट कर गया था। ये पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि FCA की एडजस्टमेंट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने पोस्टपोन कर दी थी अप टू जून 2022। इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं ये कंपनीज के कैश फ्लोज को काफ़ी हैम्पर करते हैं और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी ये थोड़ा सा डेंट करते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करे और जो IMF ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिए हैं उसके मुताबिक अगर चलती है, तो यू विल डेफिनेटली सी अ वेरी गुड प्राइस एक्शन इन हपको एंड कैपको पर्टिकुलरली इन द कमिंग मंथ्स। सही है, थैंक यू। चलें अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं स्पीकर तो बहुत देखता हूँ हमेशा, लेकिन हैंड रेज नहीं करते और मुझे पता भी नहीं चलता किसको मैंने इनवाइट कर लिया है कि नहीं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन के बॉटम पे राइट साइड में एक हार्ट का आइकन देखेंगे ना, उस पे एक्सट्रीम राइट की तरफ हैंड रेज किया हुआ है, उस पे प्लीज क्लिक करें, हैंड वाले पे। समटाइम वो सेकंड राइट पे क्लिक करते हैं तो वो जस्ट हेलो है, राइट वो रेज नहीं है, हैंड रेज वाला आइकॉन नहीं है। अच्छा, मुर्तजा साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। नजम, पहले तो आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त रही,
लेकिन आज आपके साथ इंटरनेट ने वो किया जो शहबाज शरीफ के साथ जरदारी ने किया। सो ऑन अ लाइटर मूड, मैं ये चाहूँगा कि आप अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन को किसी वीडियो में हमें बता सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन थी, चीज़ें जो है ना काफ़ी मिक्स होती रहीं। अच्छा, एक और मेरा ये सवाल है कि हम ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से हमने जो डील की उसमें जो क्लॉजेस डलवाई, मगर अब हम उन्हीं क्लॉजेस के ऊपर तो आईएमएफ से रिलैक्सेशन भी मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम फ्लड्स की वजह से वो सब चीज़ें नहीं कर सकते जो हमने कमिट की थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और दूसरा ये है कि जो हमारे पावर प्लांट्स मंशा ग्रुप के थे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उनके अंदर सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। हालांकि निशात चूनिया, निशात पावर और एक्सेप्शनल इन डिविडेंड्स, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डाउन है। ये मेरे दो क्वेश्चन हैं। रहमान भाई, please go ahead if you want to answer. रहमान। जी खिजर भाई, सॉरी मुर्तज़ा भाई, आपका क्वेश्चन थोड़ा एंड में डिस्टॉर्ट हो गया। अगर आप अपनी लास्ट बिट थोड़ा रिपीट कर दें तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। जी जी, नजम, पहला तो मेरा क्वेश्चन वो आपके इंटरनेट के वाले से ही था कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें इशू हुआ है, लेकिन इशू इसलिए हुआ कि आपकी नॉलेज जो बहुत माशाल्लाह अच्छी थी वो हम तक सही तरह नहीं पहुंच पाई ना। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि दो क्वेश्चन थे मेरे लास्ट में, कि हम आईएमएफ के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो क्लॉजेज या जो हमने कमिटमेंट्स की थी आपके साथ, उन पे हमें रिलैक्सेशन दिया जाए ड्यू टू फ्लड्स। एंड हम की भी रिटोरिक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम इन क्लॉजेस के ऊपर रिलैक्सेशन लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो हमारे सर्कुलर डेट की जो क्लॉजेस उसने डाली थी कि आप इसको ख़त्म करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, हम उस पर भी रिलैक्सेशन ले लेंगे, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये एक मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा मेरा स्पेसिफिकली मंशा ग्रुप की आईपीपीस पे था, जिसमें निशात चूनिया पावर लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड, निशात चूनिया का एक्सेप्शनल डिविडेंड होता था, वो बिल्कुल ही डिविडेंड से हट गए। और ये जो है अब इनका मुझे थोड़ा सा फ्यूचर पता करना था कि इनके ऊपर सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि मैंने सुना था इन्होंने कोई सैफ पावर और ये कोई 5-6 आईपीपीस थी जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी किया था, जो शायद अब विड्रॉ हो गया। इसके ऊपर थैंक यू मुर्तजा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार के प्लीज एक क्वेश्चन करें और ब्रीफ रखें, ताकि हम इसको 1 घंटे में या सवा या 1.5 घंटे में इसको खत्म कर सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके। रहमान भाई प्लीज गो। जी, थैंक यू मुर्तज़ा भाई फॉर योर 2 क्वेश्चंस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी आईएमएफ से जो अभी फ्लड्स पे रीनेगोशिएशंस चल रही हैं, उसमें 2 जो मेन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो ये हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी मिफ्ता इस्माइल ने एग्री की थी, उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए कुछ महीनों के लिए। और दूसरा एफसीए पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एफसीए हो सकता है गवर्नमेंट उस तरह कलेक्ट ना कर पाए जिस तरह वो यूजुअल उन्होंने एग्री किया था विद आईएमएफ। तो दिस इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर द पावर सेक्टर, और इससे सर्कुलर डेट फ्लो बढ़ेगा और हो सकता है कि आगे जो डिविडेंड पे आउट कंपनीज कर लेती, अगर उनको टाइम पर पैसे मिल जाते तो वो भी अफेक्ट होगा इससे। दूसरा, आपने निशात ग्रुप की आईपीपीज की बात की, तो उसमें एक निशात पावर, निशात यूनियन पावर और इसके अलावा 2 और आईपीपीज भी हैं उनकी, पाक जैन पावर और लाल पीट पावर। अच्छा, इसमें एनसीपीएल जो है ना, निशात यूनियन पावर, उन्होंने तो बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, बट जो बाकी हैं उन पे, हाँ जैसे मैंने कहा कि उनकी विलिंगनेस टू पे डिविडेंड जो है ना, उस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं अब, स्पेशली आफ्टर उनको इतनी ज़्यादा पेमेंट मिली उसके बाद भी उन्होंने बहुत डिसअपॉइंटिंग डिविडेंड्स दिए, तो ये लोग इससे काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। तो ये हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि देर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यूइंग अ पावर कंपनी। वन is the capability to pay dividends, and the second is the willingness to pay dividend. Thank you. Ali Khan, please keep one question and keep it brief, please. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि काइंडली मुझे बताएं कि एक नया इन्वेस्टर के लिए क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर देखें अब अभी जब पिछले दिनों डॉलर की प्राइस अप हो रही थी, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो क्या ये अच्छा टाइम होता है इसको इन्वेस्ट करने के लिए, या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो तो तब इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में एक गुड प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट लेने के लिए? आप क्या रिकमेंड करते हैं?
Ali bhai, आपका question is very unrelated. We are talking about power. If you have a question about power, please ask. Okay, sir. Okay, thank you. Fission IK. Haider 0403. Jam Sadak साहब, you can go ahead. हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, अभी आई. Go जी जी, ahead. अस्सलाम वालेकुम तमाम लिसनर को. सलाम. हैदर बात कर रहा हूँ. और सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा सरमाया की टीम और खिजर भाई वगैरह को. बहुत अच्छा आप लोग ओवरव्यू दे रहे स्टॉक के हवाले से. और मतलब काफी अरसे से देख रहा था कि इस हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं था. चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन ये पावर सेक्टर के हवाले से कि लास्ट ईयर जो केपको था इसका जो प्राइस चल रहा था वो 40 प्लस में था और अभी जो है ना ये 30 और इसी रेंज में जो है वो चल रही है. तो इस हवाले से क्वेश्चन मेरा ये कि जो सर्कुलर डेट है उसकी वजह से मतलब इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ता है. तो पर्सनली मुझे खुद जो है ना ये सेक्टर जो है ना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा. तो इस हवाले से आप लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए. थैंक यू जी. अच्छा, थैंक यू सर. आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि जब गवर्नमेंट के साथ कैपको की सेटलमेंट हुई थी तो उनके शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ टच हो गया था और आजकल 27-28 है. बट इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने मोर देन 10 रुपीज़ डिविडेंड भी दिया है. तो जब भी कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से माइनस हो जाता है. दूसरा, अगर आप कैपको की बैलेंस शीट देखें तो उनके पास अभी भी 50 बिलियन रुपीज़, मोर देन 50 बिलियन रुपीज़ कैश है, विच इज़ ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ पर शेयर. बट आई थिंक उसमें ना कंपनी पे थोड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उनका क्या प्लान है उसका. आई थिंक दे आर ऑल्सो लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन अनदर IPP. आपने सुना होगा ये बल्लो की और हवेली बहादुर शाह. सो आई थिंक कैपको इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग देम आउट एज वेल. सो वो उसके लिए थोड़ा कैश उन्होंने होल्ड किया हुआ है. अगर उनका प्लान चेंज होता है तो हो सकता है कोई अच्छा डिविडेंड अनाउंसमेंट भी आ जाए. थैंक यू. थैंक यू. वकास साहब, वकास अमानुल्लाह जी जी साहब. जी जी, शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच जी. माय क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. मुझे ये जानना है कि जो अभी गवर्नमेंट का सोलर के थ्रू इन्वेस्टमेंट के प्लान है और 10 मेगा आई थिंक मेगाहर्ट्ज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं सोलर, उसका इस सेक्टर के ऊपर आप कैसे इम्पैक्ट देखते हैं, बोथ फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और इफ़ देयर एनी डाउनसाइड इम्पैक्ट? क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ी गुफ्तगू क्रिएट हो चुकी है जो स्पेशली नॉर्मल जो आपके कंज्यूमर है उसको नेट मीटरिंग के पॉइंट व्यू से लेके, और वो उसकी एक बहुत डिबेट चली. उस पर अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें. थैंक यू. आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है. आजकल गवर्नमेंट के प्लान्स काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंस्टॉल 10,000 मेगावाट्स ऑफ सोलर. अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं. इसमें से अभी रिसेंटली आया है कि इसमें से जो 2000 मेगावाट्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं एग्रीकल्चरल ट्यूब वेल्स पे. अब एग्रीकल्चर ट्यूब वेल्स जो है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सर्कुलर डेट. उनकी जो यूनिट का रेट होता है वो भी सबसे कम होता है. वहाँ पे लाइन लॉसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं. तो अगर वहाँ पे सोलर इंस्टॉल हो जाए और वो लोग किसी तरीके से ऑफ द ग्रिड हो जाएं तो ये एक तरह से पॉजिटिव फॉर अदर पावर कंपनीज भी हो सकता है. और जनरली भी सोलर इंस्टॉल करना मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल कोल, इवन कोल के जो हमने पावर प्लांट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लगाए हैं उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ₹20 है और सोलर की ओवरऑल कॉस्ट जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज़ लेस देन 10 रुपीज़. तो अगर हम उनको बंद भी कर दें जब तक कोल महंगा है और सोलर से बिजली बनाएं तो ये गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा एंड इट विल बी बेटर फॉर सर्कुलर डेट एज वेल. Thank you. Hafiz साहब, I see a lot of speakers and I'm not able to add anyone else. तो अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया तो प्लीज अपने आप को वो स्पीकर से रिमूव कर लें so that I can add other friends. हाफिज साहब प्लीज. अस्सलाम वालेकुम खिजर भाई. अब्दुल रहमान भाई बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हैं अब्दुल रहमान भाई. मेरा सवाल बस एक ही है कि अभी जो आप एक एडवाइस कर रहे थे इन्वेस्टर्स के लिए कि जब IPP का सिलेक्ट करें
तो 2-3 कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो नियर फ्यूचर में रिन्यू होने, उनके प्लीज आप नाम बता दें ताकि उसके बारे में हम लोग कॉन्शियस रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, जो 1994 पॉलिसी के पावर प्लांट्स हैं ना, क्योंकि इन प्लांट्स की लाइफ 25 टू 30 इयर्स होती है, तो वो मेजर हैं जो एक्सपायर, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसमें कैपको आ जाता है, एक कोहिनूर एनर्जी है। आई थिंक यही हैं, क्योंकि जो हपको का 1994 वाला प्लांट है ना, उसको 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गई थी 1999 में, सो दैट विल एक्सपायर इन 2027। सो मेन कैपको और कोहिनूर एनर्जी ही हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। और इस पे भी अभी काफ़ी डिस्कशन हो रही थी पिछले डेज़ में कि कैपको का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा। मेरा इस पे टेक ये है कि अगर ये रिन्यू होगा भी तो इनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं मिलेगी, जितनी हैंडसम कैपेसिटी पेमेंट इनको मिलती है पिछले सालों में वो नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत एनर्जी पेमेंट्स जो होंगी वो ही मिलेंगी, और बस इतना होगा कि कंपनी कंटिन्यू करती रहे, क्योंकि प्लांट अभी भी 10 ईयर्स ऑल ऑपरेट कर सकता है। तो जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें मेजर डिक्लाइन आएगा। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जाम सज्जाद साहब। एसी चला लेते जी। सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि जो बंदा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हो 10 या 15 साल के लिए, तो वो पावर सेक्टर उसके लिए क्या बेहतर रहेगा? बस। थैंक यू जाम सज्जाद साहब। जब अगर आप 10 टू 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपकी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट वही होंगे जो कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के रिटर्न्स होंगे। और इस सेक्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट 15% इन डॉलर टर्म्स। अगर आप एक कंपनी को अच्छी एक डिसेंट प्राइस जो उसकी वैल्यू बनती है उस पर ख़रीद लेंगे, एंड एट द टाइम यू सेल, जब भी मार्केट के कंडीशन वैसे ही होंगे, तो आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 15% इन डॉलर टर्म्स होंगे। अब वो डिविडेंड्स के फॉर्म में आएंगे या शेयर प्राइस इंक्रीज के फॉर्म में आएंगे, वो कंपनी के ऊपर है कि वो कैसे अपने कैश को हैंडल करती है। Any other anyone else wants to ask any question? Speaker तो हैं, I don't see any hand raised. सर मेरी आवाज आ रही है, मैं पूछ सकता हूँ सर? जी जी पूछें, प्लीज सर हैंड रेज कर लें जी। मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था, मैंने शायद पता नहीं अच्छा, कोई माइक बात पे। नहीं, ठीक। नहीं गो अहेड। मेरा सवाल ये है कि अभी सर कह रहे थे कि कैपको की अर्निंग जो एग्रीमेंट है जो मिलना है उसे, उसकी बेस पे अर्निंग इसकी गिर सकती है, क्योंकि वो नहीं होगे जो अभी लुक्रेटिव इससे मिले हुए। तो फिर तो ये लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं हुआ ना कैपको, अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन होगी। बस मेरा ये सवाल है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखें, कंपनी की ना 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे उसकी वैल्यू बनती है। अगर उसकी आगे कैपको की अर्निंग्स कम भी हो जाएंगी ना, तो उसके पास, अभी जैसे मैंने बताया, उसके पास 50 बिलियन रुपीस कैश बैलेंस शीट पे होल्ड कर रहे हैं वो लोग। अब उससे कंपनी का क्या प्लान है कि उन्होंने एक और आईपीपी बाय आउट करनी है। अगर वो उस रूट पे जाएंगे तो उनकी अर्निंग्स फिर से बढ़ जाएंगी। बट जो प्लांट अभी इंस्टॉल हुआ है उसका पीपीए जो है वो अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसको ऑलमोस्ट क्लोज टू एनर्जी पेमेंट जो होगी ना उसकी, वही उसको मिलेगी। बट जो उनके पास 50 बिलियन रुपीज़ है उस पर इंटरेस्ट इनकम भी आएगी जो कि प्रॉफिट्स में शो होगी, और कंपनी इजीली अपना डिविडेंड पे आउट मेंटेन भी कर सकती है। अब्दुल रहमान भाई एक सवाल पूछ लूं खिजर भाई, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो? जी जी हाफिज भाई। जी अब्दुल रहमान भाई, अगर इस तरह है तो एक वैल्यू इन्वेस्टर तो वो ये चाहता है कि जब भी डिप आए उसके एक अच्छे स्टिप्स में तो उसको बाय करे। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने काफी रिजर्व रखा हुआ है और वो एक नई आईबीबी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा रहेगा वैल्यू इन्वेस्टर के लिए कि जब ये कैप को मजीद डिक्लाइन की तरफ जाए तो वहां पे वो अपनी जो है ना वो क्वांटिटी और वॉल्यूम को इंक्रीज कर ले।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ना, जैसे मैंने अभी बताया, जो फ़ॉर्मूला मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैंने जो अपना फ़ॉर्मूला बताया था, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, वो होता है कि कंपनी की जो आरओई कंपोनेंट है, वो फ्यूचर में उसको कितनी मिलेगी, और जो उसका सेकंड कंपोनेंट है, वो है नेट रिसीवेबल्स। सो तो जो कैपको है ना, उसमें कैपेसिटी पेमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन उसके नेट रिसीवेबल्स जो हैं, जो बहुत हैंडसम अमाउंट है वो, तो उसके हिसाब से भी कंपनी की अच्छी वैल्यू बन जाती है। अब उस कंपनी उस अमाउंट को किस तरह यूटिलाइज करती है, कहाँ इन्वेस्ट करती है, वो आपका डिटरमिन करेगी कि फ्यूचर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी। थैंक यू। फारूक साहब, आपका क्वेश्चन है, फारूक पंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम खिजर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमान। मेरा क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से रहमान साहब ने जिस तरह से समझाया है और जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ऐसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि एनालिस्ट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ग्रास्प करना, इतना आराम से एक्सप्लेन किया है। सो आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेचुलेट हिम, और आई जस्ट वांटेड टू से कि आप अपना कंटेंट इसी तरह जारी रखिएगा। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू। सैयद हसन मुस्तफ़ा साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, सबसे पहले तो अब्दुल रहमान साहब का और खिज़र साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये फॉरम अरेंज किया और आपने मुझे बात करने की इजाज़त दी। मेरा एक सवाल है। पिछले दिनों एक औगाफ के अंदर भी एक न्यूज़ आइटम आई थी और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने इसको कैरी किया था कि बहुत से पावर प्लांट्स का जो वो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं अगले 2-3 साल में, जैसे कैपको और हपको। हपको का जो मेन मेजर प्लांट जो 1994 में लगा था, वो भी मेरे ख्याल 2027 में एक्सपायर, यानी कि वो भी क्लोज डाउन कर देगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने खास तौर पे कोई नेपरा के अंदर भी कोई मूव की हुई है कि जिस पे डिस्कशन होनी है कि जो प्लांट एक्सपेंसिव फ्यूल के ऊपर चल रहे हैं उनको हुकूमत बंद करना चाह रही है। और ऐसा बल्कि नेपरा के अंदर कोई हियरिंग चल रही है या होने वाली है, ये एक न्यूज आइटम थी। और उसके बाद वो दूसरे प्लांट जो कि लेसर कॉस्टली फ्यूल के ऊपर ऑपरेट करते हैं वो उनको इंकरेज करेंगे, और जो हायर कॉस्ट प्लांट्स हैं इनको बंद करेंगे। इसहाक डार साहब की ये पॉलिसी, ये काफी न्यूज आइटम काफी अखबारों में, डाउन में, औगाफ में और काफी बिजनेस रिकॉर्डर वगैरह में ये चीजें आई थी। तो काइंडली मुझे जरा ये एक्सप्लेन करें कि अगर ऐसा होता है तो हपको का जो मेजर मेन प्लांट है वो 1200 मेगावाट का है, अगर वो बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली इसकी जो खासी ज्यादा इफेक्ट होगी अर्निंग। और अब एक हपको का एक और भी इशू है। हपको का जो 64-65 बिलियन के अराउंड की फिगर है, 60 बिलियन प्लस समथिंग, जो कि मोर देन 90% 90 डेज से ओल्डर के, तकरीबन 9 मंथ ओल्डर इनके रिसीवेबल हैं जो गवर्नमेंट इनको नहीं दे रही। तो वो गवर्नमेंट का एक न्यूज आइटम भी छपी थी कि ये गवर्नमेंट इनको डिस्करेज करना चाह रही है, क्योंकि इन्होंने पिछले 1 साल में बड़ी काफी कम जनरेशन की थी पावर की, क्योंकि प्लांट के अंदर इनके कोई इश्यूज आए थे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे ये जो मेरे सवाल हैं। थैंक यू हसन भाई, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर सेशन एज वेल। अच्छा, आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा, अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई थी ना कि गवर्नमेंट जो है कुछ पावर प्लांट्स को रिटायर कर रही है, जो अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें तो बिल्कुल ऐसे ही था कि अगले 10 ईयर्स में जो जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उसको गवर्नमेंट रिटायर कर देगी। बट इस पे इन द पास्ट डिस्कशन हो चुकी है, जिसमें हब के बेस प्लांट पे भी डिस्कशन हुई है कि ये प्लांट वैसे ही बंद पड़ा रहता है, इसको इतनी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है, तो इसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है हम उसको यूज़ करके, क्योंकि ये फर्नेस ऑयल का प्लांट है, तो अगर हम नया एक कोल का प्लांट लगाने जाएंगे तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि इसी पे 50% ऑफ द कॉस्ट इन्वेस्ट करके एक नया कोल का प्लांट इसको कन्वर्ट कर दें। बट आप जो अभी बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल यही लिखा हुआ था कि जैसे जैसे सबके एक्सपायर होंगे, 2027 में हपको का एक्सपायर होगा, पाक जेन का एक्सपायर होगा, लाल पीर का एक्सपायर होगा, तो बस गवर्नमेंट उनको रिन्यू नहीं करेगी। और दूसरा आपका क्वेश्चन सर्कुलर डेट से रिलेटेड था, आई थिंक। खिजर भाई, अगर आपको याद है ज़रा रिपीट कर दिएगा। I was just trying to do the logistics at the back end.
हसन भाई वो आप भी अगर रिपीट कर दें तो हम दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका आंसर कर देंगे। अच्छा, आगे चलते हैं हसीब साहब के पास। हसीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुशर भाई, मेरी सलाम। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब्दुलरहमान साहब, आपसे मेरे दो सवाल थे। एक तो ये था कि कोहिनूर और हबकुक का प्रोस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर आंसर हो चुका है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर रिकॉर्डिंग में सुन लूँगा। और सेकंड जो मेरा सवाल है, जो मैंने अभी मतलब किसी की रिपोर्ट वगैरह देखी थी, तो उसमें यह था कि जो पावर सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट शायद डिविडेंड पे जो टैक्स वगैरह है अभी शायद 7.5% है, शायद उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस पर आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको क्लियर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू हसीब साहब, आपके दोनों क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हैं। एक तो आपने पहले पूछा कोहिनूर एनर्जी और हबको का। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। कोहिनूर एनर्जी जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट 4-5 साल में एक्सपायर हो रहा है, तो उसकी जो मेन वैल्यू है वो उसकी रिसीवेबल्स जो हैं उधर से आती है। ऑन द अदर हैंड हबको जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईपीपी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जिसमें से कल बल्कि आज एक ऑनलाइन आया है थर एनर्जी लिमिटेड, विच इज़ अ 330 मेगावाट प्लांट जो कि थर कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। एक बिल्कुल ये ग्रोथ कंपनी है और एक जो है वो ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग की साइड पे है। सही। अब्दुल माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था अब्दुलरहमान साहब से कि जो डिविडेंड इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये आईपीपी और पावर सेक्टर को लेके, क्योंकि ये ज़्यादातर यूटिलिटीज़ कंपनीज कहलाती हैं। तो इसमें क्या चीज़ हम देखें, इनको अपने पोर्टफोलियो में रखें और कब इनको निकालें? थैंक यू अब्दुल माजिद साहब। देखें, ये बहुत मुश्किल होता है, इवन जिन लोगों का 10 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, डिविडेंड प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब आप भी इन्वेस्ट करें तो थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करें, और जैसे मैंने समझाया कि एक कंपनी की वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं, उसमें मेन होता है कैपेसिटी टू पे डिविडेंड, जो कि उसकी नेट रिसीवेबल्स और आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, वहाँ से आता है। और जो अदर कंपोनेंट है वो है नेट रिसीवेबल्स। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें, और अगर वो उसके हिसाब से एक कम प्राइस पे आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आप इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप की डिविडेंड पॉलिसी पे थोड़ी सी रिसर्च करें कि उनकी विलिंगनेस टू पे डिविडेंड कैसी है। कहीं ये तो नहीं है कि जब कंपनी के पास पेमेंट भी आएगी तब भी वो डिविडेंड कम देंगे। अब्दुल जलाल साहब। मोहम्मद वासिफ साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी बिल्कुल। जी, सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन एक ये था कि रिसेंटली अभी हमने देखा है कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक के कुछ शेयर्स भी जो है शंघाई इलेक्ट्रिक ने एक्वायर किए हैं, और के इलेक्ट्रिक भी एक चूंकि एक आईपीपी कंपनी और पावर प्लांट होल्ड करती है कराची में, तो काइंडली आप इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? थैंक यू अब्दुल जलाल साहब। केई जो है एक वाहिद कंपनी है पूरे लिस्टेड में जो कि पावर प्रोड्यूसर भी है और पावर डिस्ट्रीब्यूटर भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके पावर प्लांट्स भी हैं कराची में। इनका जो मेन इशू है ना, अच्छा खैर, शंघाई इलेक्ट्रिक वाली चीज़ तो अब एक बहुत ही पॉलिटिकल डिस्कशन हो गई है कि उसमें क्या हुआ एग्जैक्ट और कैसे वो डिरेल हुआ। बट इनका जो मेन एक कंसर्न है ना गवर्नमेंट के साथ, वो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था एसएसजीसी के साथ, जो कि इनको गैस सप्लाई करता था। उस पे अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको जो भी आप लेट पेमेंट करेंगे ना उस पे इंटरेस्ट आपको देना होगा। बट इन्होंने दूसरा जो गवर्नमेंट को बिजली सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है ना इनके, उसमें जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट इतना क्लियरली मेंशन नहीं है कि अगर गवर्नमेंट लेट पेमेंट करेगी ना तो उनको कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो इस वजह से आप इनकी अगर एनुअल रिपोर्ट भी पढ़े ना, तो ये इनका आर्ग्यूमेंट यही है कि हमें आप इंटरेस्ट ऑन फेयर बेसिस दें। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे गवर्नमेंट से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसकी वजह से इनके सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सही।
इरफान साहब, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने आपको स्पीकर की रिक्वेस्ट भेजी है, अगर ले लें तो। हसन मुस्तफा साहब, आपका एक दूसरा क्वेश्चन था, गो हेड। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा नेट ऑफ हो गया था, बहरहाल अब आ गई है। इस यहाँ पिंडी में बारिश शुरू हो गई थी, तो बहरहाल मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता था कि हपको के जो काफी ज्यादा रिसीवेबल हैं, मोर देन 60 बिलियन के रिसीवेबल हैं हपको के। तो वो जो है मोर देन 9th मंथ होल्ड हो गए हैं, गवर्नमेंट अभी भी उन पे रीपे नहीं कर पा रही। तो क्या सूरत हाल होगी, वो रीपे होंगे, कब रीपे होंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का मूड ऐसे, जैसे मैंने अपने पहले सवाल का भी हिस्सा है कि ये जो पुराने आईपीपीज हैं इनके मुतालिक कुछ अच्छा लगता नहीं है। रहमान भाई, ये क्वेश्चन मेरा भी इसी से रिलेटेड ही था। इसको लेके चलते हैं अरफान भाई के साथ। अरफान भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने तो पिछला दौर भी देखा है साक डार साहब का, तो अभी आपको क्या लगता है कि इसाक डार साहब का और पावर सेक्टर का क्या रिलेशनशिप है? अपना कैश के इश्यूज तो हैं गवर्नमेंट को, आपको लगता है कि कुछ पावर सेक्टर को कुछ मिल जाएंगे ड्यूज? इसमें खिजर साहब, जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड टू हपको, तो हपको को इन्होंने 73.3 बिलियन रुपीस पे कर दिए, जो उसका क्यूमुलेटिव रिसीवेबल था। और ये जो एक आई थिंक डिस्कस हो रहा था चाइना के लिए ना, तो उसमें कुछ सब्सिडी की भी न्यूज़ है। इतना मैं खैर इसको इन डिटेल में नहीं दे सका, बट ओवरऑल सर्कुलर डेट में आप ये समझ लीजिए कि जो ये स्टेप्स लेने जा रहे हैं, इसकी एक्यूमुलेशन रुक जाएगी। जो इसके अभी करंट लेवल्स हैं वो तो शायद स्टैंड करें, लेकिन ये फर्दर बिल्ड अप होना ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अभी एफसीए का आपने देखा कि कंपोनेंट भी क्लाइंट्स को पास ऑन हो गया है काफ़ी हद तक। तो वीसी के सर्कुलर डेट की जो एक्यूमुलेशन है वो रुक जाएगी, और उसमें काफ़ी मतलब एक हमें अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, अभी एक दो व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए थे कि जी पावर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन और इस तरह की कोई बात चल रही थी, तो उसमें वी वुड एडवाइस, जो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा पावर सेक्टर के साथ ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उसमें भी थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करें। और ओवरऑल जो है, वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपकी सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन जो है वो रुक जाएगी। वो बाकी पिछला जो उसमें अब जो पेमेंट का ये करते हैं उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक्यूमुलेशन का मैं देखता हूँ कि उसमें काफ़ी बेहतरी आती है। थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू। अच्छा, इससे मुझे अच्छा, इस याद पे आ गया, जो खिजर भाई हमारा मैं अगले, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा दे दूं। ठीक है, एक इरफान, सेकंड, मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा अगला सेशन होगा स्पेस, उसमें ऑलरेडी गेस्ट हमने किए हुए हैं स्केड्यूल। वी विल स्पीक अबाउट एक्सप्लोरेशन सेक्टर नेक्स्ट सैटरडे एट 9 o'clock। जी रहमान भाई, गो अहेड प्लीज। जी जी, मैं इस पे इरफान भाई से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। ये पूरी दुनिया में कमोडिटी बूम आया हुआ है, और जब तक ये कमोडिटी बूम ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट ख़त्म भी नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। जो यूनिट पहले ऑन एवरेज 5 रुपीज़ का होता था, वो 10 रुपीज़ का अब वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। इवन अगर आप बजट के नंबर्स भी देखें FY23 के, इस साल 1000 बिलियन का डेफिसिट है, जिसमें से 400 to 500 गवर्नमेंट पूरा कर रही है, बाकी सर्कुलर डेट है। और ये नंबर्स बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। इस साल का सर्कुलर डेट लास्ट ईयर से कम होगा, क्योंकि लास्ट ईयर FCAs बिल्कुल गवर्नमेंट ने रिकवर नहीं किए थे, बट एक्यूमुलेशन जारी रहेगी। अच्छा, इसहाक डार साहब का ना इसमें रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है। जब लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी ना, तो जब तकरीबन सर्कुलर डेट होता था 1000 अरब, और उन्होंने एक गो में ही पूरा रिटायर कर दिया था। तो गवर्नमेंट अगर अभी भी चाहे तो कर सकती है, बट अब अमाउंट ऑलमोस्ट 3000 बिलियन हो चुकी है। तो इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है रिटायर करने से, कि उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाती है। बट अक्यूमुलेशन तो जो सर्कुलर डेट की है ना, वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी। और ये तभी कम होगी जब हमारे पूरे पावर सेक्टर की कॉस्ट कम होगी और लाइन लॉसेस कम होंगे। सही।
अरफान भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे या एनी काउंटर क्वेश्चन? ठीक है जी, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आ ही जाता है, कुछ हमारी अपनी डिफरेंट थोड़ी सी ठीक रिसर्च टीम की थी, फाइंडिंग्स वगैरह। तो ठीक लेट्स होप कि देखें ये जो अभी खलाक साहब बात कर रहे थे ना, कमोडिटीज का जो बूम है, देखें दैट फेस हैज पास्ट। अभी आप क्रूड आपका नीचे आ चुका है काफी हद तक, बाकी भी कमोडिटीज काफी, ये जो ग्लोबल रिसेशन के फियर्स हैं, तो इसमें जो मैं अपनी फाइंडिंग आपको शेयर कर दूं कि वी फोर सी कि ये जो कमोडिटीज हैं ये अब आपकी एक शार्प डिक्लाइन की तरफ जाने वाली हैं इन द नियर टर्म, और इससे आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट और इस तरह की चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और ये जो गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं, पावर बेस्ड टैरिफ जो था उसको रिवाइज किया है, एफसीए को पास किया है, तो एज पर आवर रिसर्च असेसमेंट वी फील कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने वाली है इवन पावर सेक्टर में भी, और आपका ये एक्यूमुलेशन जो है नॉट इन द पावर सेक्टर बट इन द ऑयल सेक्टर पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक रुक जाएगा। बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर बंदे की अपनी रिसर्च वर्क होती है एंड वी वैल्यू देयर ओपिनियन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। रेहान भाई मैं आपके पास आता हूँ। ये एक हमारे लिसनर अभी स्पीकर बने हैं, कमोडिटीज स्टूडेंट। प्लीज गो अहेड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ये पूछना था, आज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आज एक है ना एलिमेंट आया है कि एक ये बनी गाला वाली एक न्यूज़ आई है और एक दूसरी फार्मर्स की न्यूज़ आई, तो इससे मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आ सकता है? भाई मैंने कहा आप कमोडिटीज के स्टूडेंट हैं और हम कमोडिटी पे बात कर रहे थे, और आप बताएंगे कमोडिटी का जो सुपर साइकिल है वो एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, कमोडिटी के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ना मेजॉरिटी चीज़ों की है ना प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुकी हैं, लेकिन इसमें अभी एक बिग एलिमेंट जो अभी जो बाकी है वो रशिया के ऊपर इन्होंने प्राइस कैप लगाना है, उसका एक टर्न आउट बाकी है। और 20 नवंबर को एक रशिया की जो ग्रेन की जो डील है इनके साथ, टर्की के साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो वो भी वहां पे बोलने के उसकी भी अगर वो ब्रेकेज हो जाती है तो ये दोबारा से प्राइसेस है ना ऊपर जाने के चांसेस हैं। दोनों चीजें रशिया डिपेंडेंट है। ऑयल की भी बात मैंने सही, आपको बता दी, ग्रेन की भी बात मैंने आपको बता दी। ठीक है ठीक। इरफान भाई आप अगर इसको आंसर कर दें, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, ये रेस्टोरेंट और ऑन द चार्ट आई जस्ट डिड माय एनालिसिस, तो चार्ट्स पे तो बुलिश हूँ। फ्राइडे अच्छा क्लोज हुआ है और मेरे ख्याल में ये 40,500 के करीब जो हमारा एक हायर लो लग रहा था, लेकिन चीज़ें तो सारी ठीक थी। स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव थी, क्रूड का नीचे आना, डार साहब का अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो वो भी पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन कुछ 2% कम हुई है वो भी पॉजिटिव है, तो इक्विटीज के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है। बट पॉलिटिकल फ्रंट पे मेरा ख्याल है कुछ गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सड़कों पे आ जाएं और कुछ हल्ला गुल्ला हो जाए। तो व्हाट्स योर रीडिंग अबाउट इट? इसमें जो बिग ब्रदर है जी वो अब गवर्नमेंट की साइड पे है, तो वी फोर सी कि अक्टूबर में इंशाल्लाह मार्केट्स आपकी बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। सही। रहमान भाई आप कुछ कहना चाहें? कमोडिटी सुपर साइकिल पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। इवन दो ऑयल जो है वो $120 से $80 पे आ गया है, बट अगर आप इसकी सप्लाई डिमांड सिचुएशन देखें फॉर द लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 5 इयर्स, पिछले 10 साल में ऑयल में और कोल में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आज भी अमेरिका में, कनाडा में कोई तैयार नहीं है ऑयल कंपनीज को लोन देने के लिए। तो ये $10 तो ऑयल नीचे आ सकता है, बट माय पर्सपेक्टिव इज़ दैट कि नेक्स्ट 5 इयर्स ऑयल 60 प्लस ही रहेगा। और जहाँ तक पावर सेक्टर की बात है, ऑयल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कोल ज़्यादा अब पाकिस्तान के पावर मिक्स में बहुत ज़्यादा आ चुका है। यही कोल $70-80 का होता था और अब ये 300 है। कोल में आज भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इट कैन ईजिली रिमेन 250 प्लस फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, और इस वजह से सर्कुलर डेट पे हो सकता है बढ़ती ही जाए। सही। अगले सेशन में बात करेंगे कि अगर क्या फ्यूचर होगा या किस तरह अपना एक्सप्लोरेशन परफॉर्म करेगा अगर क्रूड नीचे आ रहा है तो। रेहान साहब प्लीज, सॉरी फॉर द डिले। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल।
पहली तो प्रॉब्लम ये है कि के इलेक्ट्रिक के बारे में भी बात हो रही थी। के इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि उनको गैस की जगह आरएलएनजी दी जा रही है। तो उस आरएलएनजी के लिए फाइनेंसेस उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिमिट्स तकरीबन एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। दे आर पेइंग अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स भी इफेक्ट होंगी। तो ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि आप सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं। हम सर्कुलर डेट हमारे मुल्क में कम हो नहीं सकता अनलेस वी चेंज अवर एनर्जी मिक्स। हम अपनी तकरीबन सारी बिजली तो बना रहे हैं सिवाय हाइडल के। हाइडल हमारा कोई 6-7 हज़ार मेगावाट साल का एवरेज आता है। उसके अलावा हम सारी बिजली इंपोर्टेड आरएलएनजी से बना रहे हैं, या फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं, या फिर हम कोल से बना रहे हैं। और उसके अलावा कोई रिन्यूएबल सोर्सेज पे तो हम अभी तक शिफ्ट कर नहीं पाए हैं। और प्राइसेस ऑफ आरएलएनजी इज नॉट कमिंग डाउन, कोल इज नॉट अफोर्डेबल। और जहां तक रह गया फर्नेस ऑयल, तो वो हमारा जो डिस्टर्ब हुआ है वो हमारे डॉलर की प्राइस की वजह से डिस्टर्ब हो गया सारा मामला। तो आई डोंट थिंक इन द नियर फ्यूचर के जी आपकी एनर्जी प्राइसेस कम होंगी या सर्कुलर डेट कम होगा। और गवर्नमेंट इसमें पैसे इंजेक्ट करती रहे, हर थोड़े दिन बाद के इलेक्ट्रिक को या किसी आईपीपी को कुछ को थोड़े बहुत पैसे दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं, फिर दोबारा से वो सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी इन्होंने गैस की प्राइस नहीं बढ़ाई है। अभी ये जो ईसीसी के अंदर जाके गैस की प्राइसेस उन्होंने रिजेक्ट करवा दी थी, तो इस साल तो आपकी गैस की प्राइसेस ये रहेंगी। तो गैस की प्राइस जब तक आपकी यही रहेगी तो उसके बाद आप यू कैन नॉट इमेजिन कि गैस कंपनीज जो हैं वो कोई एक्सप्लोरेशन पे या उस पे ड्रिलिंग पे या पुराने वेल्स को मेंटेन करने पे कोई स्पेंड कर पाएंगे। उनके पास पैसे ही नहीं है कोई काम करने के लिए। उनके आधे पैसे किसी ने, उनके इलेक्ट्रिक से एसएसडीसी ने पैसे लेने हैं, पीएसओ ने मतलब पीएसओ ने भी के इलेक्ट्रिक से पैसे लेने हैं। ये पूरा सिस्टम इतना खराब हुआ है कि आई डोंट थिंक इन द नियर फ्यूचर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट आने की गुंजाइश है। सर्दियां हैं, हाइडल पावर आ रही है, हमारे पास हाइडल पावर पूरी हमारी चल रही है। और हम जो इम्पोर्टेड फ्यूल्स है उस पर हमारी रिलायंस जरा कम होगी क्योंकि डिमांड भी थोड़ी कम हो गई है इस वक्त। लेकिन जैसे ही आपकी मार्च ऑनवर्ड्स गर्मियां शुरू होंगी, आपके एफसीएस दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो सर्कुलर डेट है, जब बिजली ज्यादा बनेगी, हम जितनी ज्यादा बिजली बनाते हैं उतना सर्कुलर डेट हमारा बढ़ जाता है। तो कमोडिटीज की प्राइसेस नीचे आने से बेसिकली आरएलएनजी देखिए अभी सर्दियां आ रही हैं, हम स्पॉट बाइंग कर ही नहीं रहे हैं। और स्पॉट बाइंग अगर हम करना भी चाहें तो हम कर नहीं सकते क्योंकि आज का रेट मेरे ख्याल में कोई $60 से प्लस है इस वक्त। एंड इट इज बीइंग फोरकास्टेड एट $80 to $85 इन विंटर्स। यूरोप में सर्दी शुरू होनी है और उन्होंने जो है वो किसी प्राइस पे भी आरएलएनजी लेनी है, बिकॉज नंबर वन उनके पास स्टोरेज टर्मिनल मौजूद है, फ्लोटिंग स्टोरेज का अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया हुआ है, और उनकी एवरेज प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी। प्लस दे आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन रशिया फॉर एनीथिंग नाउ। रशिया की वॉर अगर खत्म भी हो जाएगी तो उसके बाद भी इट विल टेक सम टाइम टू कम बैक टू रशियन सप्लाईज फॉर यूरोप। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेहान भाई, आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। आपकी हर एक बात से मैं रेजोनेट कर रहा था। और ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आईपीपीस को जो थोड़ी बहुत पेमेंट होती भी है वो एनर्जी पेमेंट्स ही होती हैं। जो उनका असल टेक होम प्रॉफिट होता है वो स्टक रहता है। और एक अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था कि हपको का 9 मंथ प्लस रिसीवेबल अभी तक है। ये 9 मंथ्स तो बहुत कम है। 2-3 साल भी आप अगर कुछ पुरानी स्टडी करें ना, तो 2-3 साल पुराने भी रिसीवेबल जो हैं वो स्टक होते हैं पावर सेक्टर में। थैंक यू रहमान भाई। वासिफ साहब, वासिफ फयाज साहब। जी थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बस आपका थैंक यू करना चाहूँगा फॉर अरेंजिंग सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड दिस लेक्चर सीरीज। बाकी मेरा जो क्वेश्चन था वो हाफिज साहब ने पूछ लिया था, दैट हैज़ बीन आंसर्ड। थैंक यू वेरी मच। आप किसी और से माइक रिक्वेस्ट करके उनसे क्वेश्चन कर लें। थैंक यू वासिफ साहब फॉर अटेंडिंग। थैंक यू। अब मेरे ख्याल है इसको एंड करते हैं। रहमान भाई, अगर आपने कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं तो दे दें, एंड देन वी कैन एंड इट। इट्स टाइम टू क्लोज। जी खिजर भाई, अच्छा भाई मुझे क्वेश्चन से जो थोड़ा आइडिया हुआ कि थोड़ा बीच में डिस्टॉर्शन आ गई थी शुरू में, तो मैं एक ऐसा करता हूँ कि जो एक ब्रीफ समरी थी मेरी टॉक की वो मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो चीज़ें अगर मिस हो गई थी वो लोगों को ज़रा एक रिव्यू मिल जाए। सो जो फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पीई रेशो बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना टू एनालाइज अ पावर कंपनी, क्योंकि पीई रेशो में डेट रिपेमेंट भी होती है और जो उसका आरओई कंपोनेंट होता है वो भी लेट पे करती है गवर्नमेंट।
सो पी रेशो से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना अच्छा है। दूसरा ये था कि जो डिविडेंड्स होते हैं दे आर लंपी। ये गवर्नमेंट इन पेमेंट्स को गारंटी करती है, बट उसका टाइम फ्रेम हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी वो 2 साल बाद मिलते हैं, कभी 5 साल बाद, एक साथ 5 साल के मिलते हैं। तो डिविडेंड पेमेंट्स फ्रॉम कंपनी कैन बी लंपी, तो आपको वो सब देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड थिंग मैंने जो समझाई थी कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसकी जो आपने पूरी एनालिसिस तो कर ली, बट आप ये भी देखें कि वो जो ग्रुप है और वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी विलिंगनेस टू पे डिविडेंड्स कितनी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट में डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं होगी, आपके जो शेयर है उसकी वो अपनी रियल वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा। और जो लास्ट है, जो कि जनरल एडवाइस है फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट्स, इज़ टू अप्लाई अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप किसी कंपनी को 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पे वैल्यू कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू बाय इट एट अ बिग डिस्काउंट, ताकि आप लॉस से सेफ रहें। बाकी हमने इसमें बहुत सारी डिस्कशन की है, आप लोगों के क्वेश्चंस भी आंसर किए हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एम इस टॉक का यही था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द पावर सेक्टर, you can confidently say to yourself that I am investing in something I fully understand. Thank you. Thank you very much, रहमान भाई। Thank you, इरफान भाई। Thank you, everyone. अगले सैटरडे हम मिलते हैं ऑन एनर्जी एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर पे बात करने के लिए। Thank you, everyone. Enjoy your weekend.